अभी जो Sadhguru has gone some head surgery, so people have a lot of things to say about it. But someone who was this level of enlightened, उनको ऐसी प्रॉब्लम ही क्यों हुई in the first place? अगर वो अभी होते सो आई वुड प्रेफर ओशो फॉर श्योर, जिसे भी अच्छा। हम आज देख सकते हैं, जैसे कि सदगुरु है, श्री श्री रविशंकर है, बाबा रामदेव है, दोज हु हैव अटेन्ड समथिंग, सो दे हैव आल्सो नॉट कंप्लीटली गेट एनलाइटन. So you consider yourself as an enlightened person? यस. ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है टू नॉट हैविंग एनी सेक्सुअल डिजायर, टू नॉट एंटर इनटू अ रिलेशनशिप. ब्रह्मचर्य का सीधा साधा मतलब है कुछ लोग बियर योगा, हेवी मेटल योगा, नेकेड योगा ये सब कर रहे हैं. What do you think about it? so when you are naked you can breathe through your entire body. This is insanity. They are having only big beard and only one cloth to protect their like reproductive organs. So उनको you're saying aghoris are also yogis? there are total more than 8.4 million poses, asanas. What? जिससे yes. Hi Yash Yoga, how are you? I'm great. It's been pleasure to be here in this podcast with you. I just love that we are twinning as well. Yeah, exactly. Okay, so tell me, how long are you practicing yoga? Fortunately, I have been practicing since my childhood, and till now it's been more than 10 years. अच्छा, so आपको 10 साल हो गए योगा प्रैक्टिस करते हुए. So can I call you a yogi? So basically, if you see the concept, many people may have misconception कि योगा जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो योग ही नहीं है. In fact, it's true. Because योगा का मतलब क्या है? To connect our energy with the universal energy. ठीक है. जिसने योग का आखिरी जो अंग है समाधि, उसका एक्सपीरियंस किया हो उसे कहते हैं योगी. And for Okay. those who are practicing, or those who are in the path of yoga, उनको योगा प्रैक्टिशनर कहते हैं. So that's the difference. If you ask to me, so yes, you can call me yogi because I have experienced samadhi. Samadhi is not something कि एक बार आपका एक्सपीरियंस हो गया then you are not a normal human. आप Okay. ह्यूमन ही रहते हैं, Okay, बट so आपकी but ऊर्जा this बढ़ is जाती deep. है. You have experienced samadhi, so elaborate कि क्या कैसे. ओके. समाधि इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड ठीक कि है. जहाँ पे जब हम ध्यान में से और गहरी अवस्था में प्रवेशते हैं, विच मीन्स समाधि में आप महसूस करते हैं दैट योर एनर्जी इज कनेक्टिंग विद द यूनिवर्सल एनर्जी, ठीक जिसे है. कहा जाता है शिव का शक्ति के साथ मिलन, Okay. आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन. सो दैट्स Right. व्हाट यू फील अ वन विद दिस एंटायर यूनिवर्स. जब आपका अहंकार विलीन हो जाता है अच्छा. and you become completely one with this entire world. Okay, so this is the meaning of samadhi. So you have experienced it. Yes. When and how many times? So basically when, if you ask to me, तो ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके एफर्ट से आती है. ठीक है. It happens through you. Because जब आप मेडिटेशन में एंट्री लेते हैं, so after the meditation when you completely surrender yourself, जब आपके मन में कोई विचार नहीं होते, जब आपके हृदय में कोई इच्छा नहीं होती, where there is no physical movement in your body, where there is no want, no desire, nothing, जब आप पूर्ण शून्य अवस्था में पहुंचते हैं, तब समाधि की क्षण आपके साथ घटित होती है. इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू वांट एंड दैट यू कैन अचीव, इट हैपन्स टू यू. Okay. So you experienced this recently? Recently, which means just 2-3 months back, I have Okay. just experienced. So whenever I go deep into those practice, I अच्छा. experience this. तो जब भी हम योगा की बात करते हैं, जब ओनली थिंग विच कम्स टू आवर माइंड आर आसनास. ठीक है. True. आई एम श्योर ऑडियंस को भी ये लगता होगा कि आसन करने को ही योगा कहते हैं, बट आई एम श्योर कि योगा इज मच मोर टू इट, लाइक इट हैज मच मोर टू इट. सो आप थोड़ा बताओ व्हाट अदर थिंग्स आर देयर इन योगा. So basically, yoga and yogasan both are different thing. ठीक है. Yoga is a whole umbrella Okay. जिसमें 8 limbs है, और योगासन if you break down, योगा प्लस आसन, आसन यानी मुद्रा, आसन यानी पोजेस, फिजिकल पोस्चर जो हम अटेन करते हैं. ठीक है. सो योगा इट इज अ कंप्लीट सब्जेक्ट जिसमें 8 लिम्स है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ठीक है. विच मीन्स 8 स्टेप्स. उसमें से एक स्टेप है आसन, जिसे कहा जाता है योगासन. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. नो, इट इज अ थर्ड स्टेप. ठीक है. तो आसन करने से पहले भी कुछ योगा के स्टेप्स हैं. एग्जैक्टली. क्या है वो, आप एक बार सो बता द दो. फर्स्ट स्टेप इज यम.
सेकेंड इज नियम. यम. यम और नियम का मतलब क्या होता है? अ यम विच मीन्स एक ऐसे जो कहते हैं कि डिसिप्लिन, सोशल डिसिप्लिन जो आपको 5 फॉलो करने चाहिए ठीक व्हेन है. यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल उसमें पहला है अहिंसा, फिर अस्तेय, अपरिग्रह, देन ब्रह्मचर्य और सत्य. अहिंसा का मतलब है टू नॉट बीइंग हार्मफुल टू एनी अदर स्पीशीज और अदर ह्यूमन. So it also means being vegetarian. ऑफ कोर्स. Okay. सो अहिंसा में ही छुपा है वेजिटेरियन रहने का एक ठीक है. मैसेज. Okay. सो दीज आर द 5 यम. So we have covered ahimsa. Okay, next. Okay. The next one is asteya, Okay. which means to not steal anything. ठीक है. चोरी चोरी नहीं नहीं करना. करनी. ठीक है. The third one is aparigraha, which Okay. means to not store anything. ठीक है. जितनी आपकी ज़रूरत है उतना ही आपके रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है. because that leads to the materialistic world. So that's why in yoga it has been mentioned कि आपको अपरिग्रह नहीं करना. ठीक है. Fourth one is satya, which means to speak truth. Okay. Fifth one is brahmacharya. ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है टू नॉट हैविंग एनी सेक्सुअल डिजायर, टू नॉट एंटर इनटू अ रिलेशनशिप. ब्रह्मचर्य का सीधा साधा मतलब है टू बिहेव लाइक अ ब्रह्म जैसा आचरण करना, यानी ब्रह्मचर्य. Okay, but everyone thinks कि brahmacharya means not having any sexual desire, or does it mean having sexual desire for only one person? Like, what is the differentiation? सो बेसिकली ब्रह्मचर्य का यही मतलब है दैट वॉट एवर सेक्शुअल डिजायर यू आर हैविंग, इट Okay. शुड बी इन योर कंट्रोल, इट शुड नॉट कंट्रोल यू. जब अच्छा. आपकी पकड़ उस पर आ जाती है दैट मीन्स इट्स ब्रह्मचर्य. Okay, so this is the first step. यस. Okay, now second. सेकेंड वन इज नियम, विच मीन्स पर्सनल डिसिप्लिन. पहले Okay. जो भी हमने 5 की बात की यम, दैट इज अ सोशल डिसिप्लिन. ठीक है. सोसाइटी में जब आप रहते हैं तो इस तरीके का आपका डिसिप्लिन होना चाहिए. नाउ इट्स कम टू इंडिविजुअल डिसिप्लिन. सोच, संतोष, स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्रणिधान. ठीक है. पहला है सोच, विच मीन्स टू क्लीन अवर बॉडी. Not only to clean our bowels movement, but to clean our internal body as well. That's why in yoga it has been mentioned षट क्रियास. 6 ऐसी टेक्निक कि जो आपके बॉडी को बाहर से नहीं अंदर से क्लीन करती है. आपकी ठीक है. रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन करती है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करती है, एंड साथ ही साथ आपके माइंड के जो भी विचार है उनको शांत करती है. तो हम डिस्कस करें इनकी 6 के बारे में. Perfect. ठीक है. हाँ. So 6 प्रोसेस. guys, this is how you can clean your inner Internal body. body, Internal exactly. body. Okay. This special podcast with top Indian coaches and educators is sponsored by Class Plus. Class Plus भारत का एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि एक मॉडर्न डे एंड ऑनलाइन एजुकेटर, कोच, मेंटोर को कोर्सेज सेल करने के लिए टेक्नोलॉजी देता है. आई बिलीव हम सबके पास एक ऐसी स्किल जरूर होती है जो हम औरों को सिखा सकते हैं. एंड इफ यू आर एन एक्सपर्ट इन एनी फील्ड, वेदर इट बी टेलरिंग, इन्वेस्टमेंट और डांसिंग, यू कैन स्टार्ट मेकिंग 1 लाख पर मंथ टू 1 करोड़ पर मंथ बाय सेलिंग कोर्सेज ऑनलाइन. क्लास प्लस की टीम से कनेक्ट करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में डाल दिया है. आप इनकी टीम से कनेक्ट करो और इनसे बात करो कि कैसे आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च कर सकते हो. सो क्लीन करने से पहले उससे भी ज़रूरी पॉइंट है दैट यू शुड गेट द आइडिया कि कब क्लीन करना चाहिए. बिकॉज आपकी बॉडी इस तरीके से यूनिवर्स ने डिज़ाइन की है कि इट विल गिव यू साइन. अच्छा. आपको निशानियाँ देगा दैट नाउ अब भाई तेरी ज़रूरत आ गई है, नाउ यू नीड टू क्लीन योर बॉडी. सो दीज आर द साइन कि जिसमें आपकी आँखें लाल हो जाना, Okay. आपके फेस पे, आपके बैक के पे पिंपल्स होना, Okay. साथ ही साथ डार्क येलो यूरिन रिलीज होना, Okay. to having some acidity, to Okay. having some headache, to having some like lethargic, joints में पेन होना. So these are some basic sign जो आपको कह रहा है ठीक कि है. आपकी बॉडी को क्लीन करने की ज़रूरत है इंटरनली. Okay. उसमें षट क्रिया में सबसे पहली क्रिया है जल नीति, which means to pour the water from one nostrils and to bring it out from the another nostril. I remember going to yoga with my mom जब मैं छोटी थी, और ये तब वहाँ पर ऐसा ही कुछ होता था. Right? एग्जैक्टली नहीं याद कि कुछ होता, बट समथिंग वेरी डिफिकल्ट यूज टू हैपन एंड मैं हमेशा डरती थी उसको देख के, बिकॉज एवरीवन यूज टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली, एंड आई गेस इट्स वेरी डिफिकल्ट. नो. See, if you learn the right way, in the Okay. right way, so it's easy. But ठीक है. directly अगर आप insert करोगे पानी तो ऊपर चला जाएगा and that will hurt you a lot. So you must need to practice this all thing under any right instruction
with the right ओके, yoga सो instructor. नाक से पानी डाल के कान से निकालना। नहीं अच्छा नाक से पानी डाल के दूसरे नाक से निकालना. अच्छा ओके ठीक है, गॉट इट। We'll put some clips so that people will get some basic idea कि हाँ किस तरीके से सिखाया जाता है, otherwise कुछ और कर लेंगे. ठीक Okay. है, ओके। So that is जल नीति. दूसरी प्रोसेस है कपाल भाती. कपाल भाती which दैट means आई नो, yes, ऐसे एंड हाँ, यस यस, with every exhalation you are creating a jerk on your navel. और आपकी navel 72,000 एनर्जी चैनल्स का मेन मूल है, ओके सेंटर पॉइंट है, बिकॉज यू हैव बॉर्न विद द नेवल. आपका जन्म ही नेवल से हुआ है, तो आपकी एनर्जी जो नाड़ियाँ है 72,000 नाड़ियों का केंद्र आपकी नेवल है. सो बाय जस्ट क्रिएटिंग अ जर्क ऑन योर नेवल यू आर improving the blood flow and you are also releasing all those blockages which may have. ओके थर्ड, शुद्धिकरण षट क्रिया में धोती. धोती दो प्रकार की है, वस्त्र धोती और वमन धोती, विच मीन्स टू ड्रिंक अ वाटर until you feel completely fulfilled. आपके गले तक पानी आपको महसूस हो जाए उतना पानी पीना है, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के lukewarm water. ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर हैविंग एनी फूड. शाम को जब आप सोए तो सोने से पहले थोड़ा सा लाइट खाना है ताकि कल सुबह आप ये प्रोसेस कर सकें, ठीक है, जिसे वमन कहा जाता है. So by just using tongue cleaner or by using your 2 fingers, you are just touching at the end edge of the tongue, and by just pressing it, you will feel like vomiting. So जो Okay. भी आपने पानी पिया है वो पूरा बाहर आएगा. अच्छा। So it is cleaning your stomach. ल्यूकवार्म वाटर विद सॉल्ट सुबह Yes. पूरा ही हाथ मतलब पूरा फुल कर At कर least पीना है। minimum आपको पीना है 1.25 लीटर वाटर. अच्छा, अगर ओके, आपकी उम्र कम है हाँ, तब आप इतना नहीं पी सकते, बिकॉज आपका पेट की साइज ही इतनी कम है. हाँ, So after the age of 16 or 18, you can just try this. ठीक है, And that too, this Shat Kriya, all this Shat Kriya, 6 process must be practiced under any yoga instructor, professional yoga instructor, ताकि ठीक है। आपको कोई भी डिफिकल्टीज आए तो वो हैंडल की जा सके. हम्म, अब नेक्स्ट की बात करें, फोर्थ वन इज शंख प्रक्षालन, ओके, विच मीन्स जैसा आपने पानी पिया हम्म, वैसा का वैसा ही नीचे से एनस के थ्रू बाहर निकलता है. अच्छा, Which means drink some water, perform 5 poses. Drink some water, perform 5 poses. ऐसा कंटिन्यूसली 2 घंटा में करना है. एंड एट द Okay. एंड यू रियलाइज कि जैसा आप पानी पी रहे हैं एनस के थ्रू, नॉट थ्रू योर यूरिन, हम्म, ऐसा ही क्लीन पानी निकल रहा है. विच मीन्स आपका स्टमक भी क्लीन हो गया और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन पूरा डाइजेस्टिंग सिस्टम क्लीन हो गया. but doing all of this must be difficult, no? यस इट इज डिफिकल्ट. Okay. So you do this on a daily basis? नॉट एट ऑल, बिकॉज ये शंख प्रक्षालन जो मैंने कहा हाँ, ये 6 मंथ में एटलीस्ट 1 टाइम ही करना चाहिए. अच्छा, ओके, देर आर सम स्पेसिफिक गाइडलाइंस कि ये इतने टाइम में ही आपको करना है. इससे अगर ज़्यादा करेंगे, किसी भी चीज़ अगर एक्सेसिवली अगर आप करें सो फ़ायदा नहीं, नुकसान पहुंच जाती है. ओके, सो इट शुड बी इन द बैलेंस. हम्म, नेक्स्ट वन जो है एनीमा, कि जिसमें थ्रू एनी इक्विपमेंट या फिर एक पोर्ट होता है पानी का, ओके, जिसके थ्रू एक नली लगी हुई होती है. एंड ठीक है। दैट नोस्ट्रिल आप इंसर्ट करते हैं आपके एनस के थ्रू. हम्म, वो औषधि का एक पानी होता है, ठीक है, प्लेन वाटर नहीं होता. हम्म, आंवला, बहेड़े और हरे, त्रिफला का भी पानी हम यूज़ कर सकते हैं. हम्म, सो उसके थ्रू एनएस के थ्रू हम इंसर्ट करते हैं. ये डॉक्टर्स भी करते हैं ना? एग्जैक्टली. हम्म, कॉलन क्लिनसिंग जो हम्म, अभी करंट जो नाम अभी मार्केट में चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ए कॉलन क्लिनसिंग. ओके, सो उसके थ्रू हम इंसर्ट करते हैं पानी, और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में यूजुअली व्हाट हैपेंस, हमने जो भी खाना खाया हम्म, उसका 100% हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द फूड विच वी आर ईटिंग राइट नाउ. हमारी लाइफस्टाइल ही इतनी ऐसी हो गई है, 90% वट एवर वी आर ईटिंग उसमें मैदा है. करेक्ट, आशीर्वाद का आटा सोच के हम लाते हैं क्लीन आटा, पर वो क्लीन आटे का क्या मतलब कि जिसमें बाहरी परत ही उसकी चली गई. अच्छा, सो सम न्यूट्रिशन विच, तो आपके हिसाब से कौन सा आटा लेना चाहिए? जो आटा आपके खुद परचेस किया है, जो मतलब गेहूँ, और जो आप चक्की से पिसवाए, ओके, वो आटा बेस्ट है आपके लिए. अच्छा, ठीक बिकॉज रिफाइनरी से जो आता है वो क्लीनिंग के नाम पे उनकी आउटर शेल जो है लेयर, उसको ही हटा देता है. समझ गया, सो दैट इज़ नॉट गुड. उसकी जो स्टार्च है, उसकी जो मतलब स्टिकीनेस है वो ज़्यादा होती है, एंड दैट स्टक्स इनसाइड योर स्टमक. ओके, सो दैट्स व्हाई यू शुड अवॉइड दिस. मेन पॉइंट पे आते हैं. तो जब आप इंसर्ट करते हैं पानी थ्रू द एनिमा, थ्रू द एनल,
तब वो फ्लश आउट कर दिया आपके लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक और है। जब वो गंदगी बाहर निकलती है यू कैन सी लाइक सरप्राइज कि इतनी ज़्यादा गंदगी आपके पेट में पड़ी थी। ओह, या अच्छा। और वो प्रोसेस भी 6 मंथ में एटलीस्ट एक बार करनी ही चाहिए आपको। कई अच्छा। सारे ऐसे सेंटर है, पंचकर्मा है, फिर वेलनेस सेंटर है जहाँ पे ऐसी प्रोसेस की जाती है, करवाई जाती है, डिपेंड्स ऑन योर फिजिकल बॉडीज कंडीशन। ओके। सो तो एटलीस्ट इसमें से जैसे आपने जो कपालभाति बताया वो तो हम डेली कर सकते हैं, ठीक एग्जैक्टली है। फर्स्ट वाला जो आपने बताया यहाँ से यहाँ वाला, वो भी जल डेली में कर तो सकते हैं। डिपेंड्स, आपकी अगर ज़्यादा अस्थमा की प्रॉब्लम है, ज़्यादा आपकी हम्म। नोस्ट्रिल ब्लॉक रहती है तो डेली कर सकते हैं। एंड लास्ट के दो हम 6 मंथ्स में एक बार करेंगे। एग्जैक्टली ओके, ठीक है। सो यश, टेल मी व्हाट इज द आउटकम ऑफ योगा, लाइक व्हाट इज द फाइनल थिंग व्हिच ऑल द योगीज आर सीकिंग? मेन पर्पस एक ही है, हाँ, टू गेट एनलाइटनमेंट ठीक है। थ्रू योर फिजिकल बॉडी। यू प्रिपेयर योर सेल्फ। कोई भी जर्नी की शुरुआत होती है हमारी फिजिकल बॉडी से, देन यू ग्रो एट द हायर लेवल। ओके। तब आप एनर्जी के लेवल पे अपने बॉडी को काम करते हैं, बिकॉज अवर फिजिकल बॉडी हैव 3 काइंड्स। पहले है हमारा स्थूल शरीर जो हम देख पा रहे हैं, द फिजिकल बॉडी विच वी कैन टच, हमारा ब्लड, हमारी हड्डियाँ, हमारा मसल्स जो भी है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो। दूसरे लेवल का बॉडी है सब्टल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, जो इंद्रियों का बना हुआ होता है। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, और 11वां आपका मन। तो इन सभी इंद्रियों के शरीर को जब हम बैलेंस में लाते हैं तब नेक्स्ट लेवल है आपका मन, आपका माइंड, आपके विचार। जब उस पे भी आपका कंट्रोल आ जाता है देन यू कैन गो एट द हायर लेवल ऑफ मेडिटेशन। एट द एंड गोल एक ही है, टू कनेक्ट। योग विच मीन्स कनेक्ट करना, कनेक्ट अवर एनर्जी विद द यूनिवर्सल एनर्जी। समाधि, सतोरी, मुक्ति, एनलाइटनमेंट, सभी का नाम अलग है पर मकसद और उसका मेन मीनिंग एक ही है, टू गेट कनेक्टेड विद द यूनिवर्स। So you consider yourself as an enlightened person? यस, बिकॉज एनलाइटनमेंट कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो इस दुनिया से परे है, कोई ऐसा जादू तो ना नहीं है। एवरीवन कैन बिकम एनलाइटनमेंट। ठीक है। मुक्ति, समाधि, सतोरी, टू गेट कनेक्ट विद द यूनिवर्स, समाधि, एनलाइटनमेंट, ये सभी चीज़ें एक ही है। बट लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि एक बार मैंने समाधि का एक्सपीरियंस कर लिया, एक बार में एनलाइटनमेंट हो गया तो मतलब हो गया। इट इज़ नॉट द एंड, इट इज़ नॉट द डेस्टिनेशन। बट ऐसे कहते हैं ना, उन्होंने समाधि ले ली, which means what, now they are like dead or what? दैट इज डिफरेंट। अच्छा। समाधि ले लेना विच मीन्स टू डाई। समाधि मतलब सम के साथ एक हो जाना, सम मतलब समग्र। So that समाधि is different. और इसको हम कैसे बोलेंगे? जैसे अभी मैंने बोला उन्होंने समाधि ले ली, so that means they are दे हैव लीव देयर बॉडी। dead, ठीक है। एंड जो आपने जो समाधि एक्सपीरियंस करी, how मैंने will I अभी अपना explain? शरीर नहीं छोड़ा। So you have experienced samadhi. Exactly. That is the right word. Exactly. Okay. Which means to experience certain moments कि Okay. जो आपको समाधि की अवस्था एक्सपीरियंस करवाते हैं, दैट गिव्स यू द एक्सपीरियंस कि अगर आपने ये फिजिकल बॉडी लेफ्ट कर दी, छोड़ दी, उसके बाद का एक्सपीरियंस कैसा होगा। अच्छा, तो वो You आपने बॉडी को लीव करने से पहले ही वो एक्सपीरियंस ले लिया। एग्जैक्टली। और वो एक्सपीरियंस सिर्फ 2 से 3 सेकंड का होता है, ज़्यादा का नहीं होता। जिसे भी हम आज देख सकते हैं, जैसे कि सदगुरु है, श्री श्री रविशंकर है, बाबा रामदेव है, दोज हु हैव अटेन्ड समथिंग, सो दे हैव आल्सो नॉट कंप्लीटली गेट एनलाइटन। उनको भी रेगुलरली वो एनलाइटनमेंट की मूवमेंट फील होती है। दे कैन एक्सपीरियंस समाधि, बिकॉज अगर उसने समाधि ले ली होती तो आज इस दुनिया में नहीं होते। अच्छा। सो दैट इज द मेन थिंग। But they, like people who are this level of enlightened, they can plan their death. Is it so? ऐसा ज़रूरी नहीं है, अच्छा। बिकॉज उनको एक आभास हो जाता है Okay. कि कब हमारा शरीर, इस शरीर में हमारे प्राण ऊर्जा को रहने लायक कब नहीं बचा। बिकॉज अच्छा। आपने कई सारे ऐसे मॉन्क्स को देखा होगा दैट दे कैन प्रेडिक्ट देमसेल्फ, उनकी डेथ कब होगी वो प्रेडिक्ट कर सकते, बिकॉज वो I have इतने this book kept here by Sadhguru, Death. एग्जैक्टली। You've read this? ऑफ कोर्स उसमें ऐसा भी लिखा हुआ, आपने शायद पढ़ा होगा, दैट प्राण के अलग अलग स्तर है, लेवल है। अच्छा। जब हम मरते हैं तो पूरे ही नहीं मर जाते,
धीरे धीरे अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्राण हमारे शरीर से विलीन होते हैं, छोड़ते हैं। ओके जो हम मेन पॉइंट पे की बात कर रहे थे उसमें समाधि का मतलब यही है दैट आप समग्र के साथ एक हो रहे, आपकी एनर्जी समग्र के साथ एक हो रही है। अगर आप देखें तो ये पूरा जो गेम है वो एनर्जी का ही है। ठीक है जिस इंसान ने ये समझ लिया किस तरीके से एनर्जी को, ऊर्जा को संतुलित करे, उसने अपने शरीर और मन पे काबू पा लिया। जैसे कि जो भी हम खाना खाते हैं उससे मिली हुई ऊर्जा को हम सोते वक्त स्टोर करते हैं। जब हम ठीक है जगते हैं, काम करते हैं, खर्च होती है। आसन प्राणायाम से उस ऊर्जा को जागृत करती है, प्राणायाम से उस ऊर्जा को जागृत करते हैं, धारणा से उसको केंद्रित करते हैं, ध्यान से ऊपर उठाते हैं, वासना से वो नीचे गिरती है, प्रेम से फैलती है और समाधि से समग्र के साथ एक होती है। ओके सो दैट इज अ साइंस ऑफ एनर्जी। और जिसने ये समझ लिया, समझो समाधि को पा लिया। ठीक है। सो अभी आपने बोला कि यू आर एनलाइटेंड, बट इफ आई वांट टू गेट एनलाइटेंड, व्हाट इज द वे फॉर मी? ऑफ कोर्स जो अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने दिया हुआ है वो एक पाथवे है, एक रास्ता उन्होंने क्रिएट कर दिया है दैट यू आर अ नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल पर्सन से अगर आपको यहाँ पहुँचना है तो ये वे है जिसमें हमने बात की अष्टांग योग की 8 लिम्स ऑफ योगा, जिसमें हम पहुंचे थे दूसरे लेवल पे, यम और नियम पे। ठीक है। फिर तीसरा है आसन। अभी डॉट्स आपको कनेक्ट होते हुए लगेंगे। नाउ एवरीथिंग विल कनेक्ट। यस यस। नेक्स्ट है आसन। आसन की यही डेफिनेशन है, स्थिरम सुखम आसनम, विच मीन्स एक ऐसी स्थिरता, एक ऐसी पोजीशन कि जहाँ पे शुरुआत में तो आपको वो पोजीशन डिफिकल्ट लगेगी, पेनफुल लगेगी, बट विद द हेल्प ऑफ योर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस यू मेक दैट पोजीशन कंफर्टेबल इनफ टू होल्ड इट। आपने देखा होगा कि शिव कंटिन्यूसली समाधि में इसी पोजीशन में ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। सो दैट इज हिज आसना। देयर आर टोटल मोर देन 8.4 मिलियन पोजेस, आसनास, जिसे यस आसनास, जिसे 84 योनि भी कहा जाता है। 8.4 मिलियन? यस, मतलब 84 लाख योनि। आपको कितने मिलियन आते हैं? सही, जैसे जैसे हमारी शरीर की कोई भी मूवमेंट्स है, सो दैट कंसिडर कोई भी पोजीशन दैट कंसिडर एज अ योगा पोज। अभी मैं इस नमस्ते मुद्रा में हूँ, सो दैट इज अ योगा पोज। उसमें से 84 योगा पोजेस दैट हैज बीन सेपरेटेड, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टफुल है। नेक्स्ट स्टेप है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब प्राण का आयाम। प्राण मतलब हमारी ऊर्जा, हमारे ब्रीदिंग। यस, द वाइटल एनर्जी विच यू आर कंटिन्यूसली इनटेकिंग। सो उस ऊर्जा का आयाम विच मीन्स हैविंग अ कंट्रोलेशन ऑफ दैट प्राण ऊर्जा इज प्राणायाम। सो अगर for example if I'm traveling or I'm just free for 10-15 minutes, so is breathing exercise something which I can do in that time frame for a better body? Definitely you can do it. मतलब खाली बैठे हो तो breathing exercise कर लो, ऐसा? True. ठीक है। सबसे easy and सबसे effective breathing exercise if you could just do it. Definitely. सबसे easiest है अनुलोम विलोम, जिसमें हम हमारे ब्रेथ को अल्टरनेटिव नोस्ट्रिल्स के थ्रू पास ऑन करते हैं, विच मीन्स ये राइट है, ये लेफ्ट है। राइट से मैं इनहेल करूँगा, लेफ्ट से एक्सहेल करूँगा। जहाँ से एक्सहेल किया वहाँ से ही इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से, विच मीन्स क्रिएटिंग अ लूप। एंड व्हाट इट डज, हमारी दोनों नोस्ट्रिल्स की अलग एनर्जी है। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी रिप्रेजेंट करती है सूर्य को, सन को। चंद्र नाड़ी रिप्रेजेंट करती है मून को। ठीक है। और उसमें भी हमारे शरीर की 3 नाड़ियां है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। हठ योग की एक डेफिनेशन है, हकारस्य कठित सूर्य, ठकारस्य कठित चंद्र, सूर्यम चंद्रम सूर्योगात हठ योग निगद्धते, विच मीन्स दोनों नाड़ियों में से जो प्राण ऊर्जा हम कंटिन्यूसली ले रहे हैं, उस ऊर्जा को सुषुम्ना नाड़ी में एकत्रित करना हठ योग है। दैट्स व्हाई एवरी योगी हैज मेंशन्ड that if you cannot control your mind, और usually mind control भी नहीं किया जा सकता because it is not something that you can control. Okay. नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, control over your breath. By just controlling over your breath, you can control your mind. So yoga was originated in India, right? So ये अब बाहर भी लोग इसे follow कर रहे हैं? Of course, India से ज़्यादा I think. अच्छा,
ट्रू। कहाँ हम देख सकते हैं इसे इंडिया से ज़्यादा? सबसे ज़्यादा जो फेवरेट लोकेशन है वो है कोस्टा रिका, बाली, थाईलैंड, अच्छा। गोवा। गोवा तो हमारे इंडिया में ही है। हाँ। सो दीज आर सम लोकेशन जो एकदम फेवरेट मानी जाती है योगा की प्रैक्टिस के लिए। एंड जैसे आजकल डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम्स भी बढ़ गए हैं, डू यू थिंक योगा से हम उनको भी डील कर सकते हैं? डेफिनेटली, ओके। बिकॉज डिप्रेशन का मतलब क्या है, आप हमारे माइंड के साथ एक नहीं है। बिकॉज ओके। बिकॉज डिप्रेशन का मतलब क्या है, आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके माइंड में ज़्यादा ही विचार चलने लगते हैं। हम्म। वैन जब आप ज़्यादा ही अपने विचारों को जो किसी काम के नहीं ज़्यादा से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तब आप फील करते हैं डिप्रेस्ड, तब आप ओके। फील करते हैं एंशियस। और ओके। योग क्या हमें सिखाता है, टू जस्ट किल योर थॉट्स। हम्म। योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की यानी कि माइंड की जो भी वृत्ति है उसका निरोध करना, उसे हटाना, वही तो योग है। Okay, so you told that yoga is originated from India, but where specific in India? Some say it's from Bihar. What do you think? And some even say that it comes from directly Shiva. So कहाँ से originate हुआ है yoga? सी योगा का जो नॉलेज है, Hmm. दैट इज ट्रू दैट इट हैज कम फ्रॉम लॉर्ड शिवा, Okay. जो आदि योगी का एक स्वरूप है। Okay. आदि योगी विच मीन्स द फर्स्ट गुरु, द फर्स्ट टीचर ऑफ योगा, जिन्होंने सिखाया योग को सप्तर्षि को, 7 सजेस, जिसके बारे में शायद आपने सुना ही हो। जो stars भी. एग्जैक्टली। Hmm. सप्तर्षि, सप्तऋषि, उसमें से एक महर्षि, विच मीन्स सप्तर्षि 7 अलग अलग कॉन्टिनेंटल्स में गए एंड दे हैव स्प्रेड द नॉलेज ऑफ योगा। सो दैट्स हाउ इट हैज़ बीन शेयर। Okay. इसके गुरु शिष्य की परंपरा, जैसे आपको पता है कि हमारे पास एंशियंट टाइम में चल रही थी। सो सप्तर्षि से उनके शिष्यों को मिला, उनके शिष्यों से उनके शिष्यों को, एंड Okay. दैट्स हाउ इट हैज़ बीन स्प्रेड। So it is coming directly from Shiva. एग्जैक्टली। Okay. पर अगर हम किसी प्लेस की बात करें, सो विच प्लेस कंसिडर एज अ योगा सिटी, सो दैट इज ऋषिकेश, Okay. द कैपिटल सिटी ऑफ योगा। Uttarakhand is my hometown. Okay, so when we are saying that it's coming from Shiva, so does it have a religion aspect attached to it also? Like yoga has something to do with Hinduism? डायरेक्टली अगर मैं कहूँ, सो यस इट इज कनेक्टेड, बट उसका मतलब ये नहीं है दैट योगा इज ओनली कैम आउट फ्रॉम द हिंदू रिलीजन। बिकॉज है। जैसे मैंने कहा सप्तर्षि, तो हम्म। सप्तर्षि फैले थे अलग अलग दुनिया के हर कॉर्नर में, एंड दे हैव Okay. स्प्रेड द नॉलेज ऑफ योगा। जैसे कि अगर हम चाइना में कहें तो यिन येंग करके एक मेथड है, सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योगा। Okay. योग विच मीन्स इट इज अ नॉट स्पेसिफिक नॉलेज, जिसके टोटल मोर देन 112 वेराइटीज है, टाइप्स है, फॉर्म है। हम्म। सो ऐसा नहीं कि मतलब आपने योग किया तो मतलब सिर्फ आप आसन से ही, जो अष्टांग योग में की मैंने जो प्रोसेस समझाई, वैसे ही आप अटेन कर सकते हैं। Okay. देयर आर मोर देन 112 फॉर्म ऑफ योगा। सो योगा वी कैन से इट इज अ स्पिरिचुअल, नॉट अ रिलीजियस, that is not connected with only one religion. Have you seen people of other religion in India practicing yoga? Of course. Okay. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, सिख सिख धर्म का अगर एग्जांपल लें, तो ये जो कुंडलिनी योग है उनके साथ वो काफी कनेक्ट करता है। Okay. कुंडलिनी योगा विच मीन्स टू अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर एनर्जी थ्रू आउट आवर चक्रास। 7 चक्र का कॉन्सेप्ट हमारे में भी है। चक्रास विच मीन्स एनर्जी के ऐसे स्थान जो हमारे शरीर में, अगर आप चीड़ फाड़ के देखो तो आपको नहीं मिलेगा, बट एनर्जी के लेवल पे जो आप देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। सबसे पहला चक्र है हमारा मूलाधार चक्र, ठीक है। दैट स्टेज एग्जैक्टली हमारे एनस के 2 इंच ऊपर। Okay. दूसरा है स्वादिष्ठान। तीसरा है मणिपुर विच मीन्स एग्जैक्टली ऑन अवर नेवल। चौथा है अनाहत, नियर टू अवर हृदय, हार्ट। देन विशुद्धि, आज्ञा एंड सहस्रार। Okay. सो दीज आर 7 चक्रास, एनर्जी के स्थान। तो नीचे से जब भी हम जन्म लेते हैं, हमारी सबसे ज़्यादा ऊर्जा, एनर्जी स्टोर होती है मूलाधार में। मूलाधार की सबसे ज़्यादा जो मांग है वो 3 ही मांग है, टू हैविंग अ कंटिन्यूस अवर लेगेसी,
दैट्स वाई वी आर हैविंग द मोस्ट सेक्शुअल प्लेजर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दूसरा हमारा डिज़ायर है खाने का, टू सर्वाइव ओवर सेल्फ। और तीसरा है टू जस्ट empty of our thoughts, to get empty from our thoughts. That's why people are addicted to drugs, alcohol. So ये मूल मांग है मूलाधार चक्र की, मन की शांति, to continue your legacy and to survive. That's why सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी मूलाधार में रहती है। Okay. So with the help of कुंडलिनी योग, you uplift your energy, और आपके चक्रों से वो एनर्जी को ऊपर चढ़ाते हैं, and you can bring out your energy from सहस्रार। जब आप सहस्रार से उस ऊर्जा को रिलीज करते हैं तब आप समाधि को पाते हैं। Okay. You believe in which god the most? Who's your favorite god? Of course, Shiv can connect with directly yoga. Okay. So that's why it is not something favorite. It is something more we can relate to it. You can relate to Shiva more. Have you felt his powers around you? True. Any specific event which you want to share? So events की अगर हम बात करें, so whenever I go to ऋषिकेश, जब गंगा के घाट पे I meditate, I can feel that aura. Aura which means the energy which stays outer side of the 2 इंच से लेके उसकी सीमा अनंत हो सकती है। अच्छा। हमारे शरीर से 2 इंच के बाद हमारा ओरा स्टार्ट होता है। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा, whenever some person comes into room, उसकी एक वाइब ही अलग होती है, एक एनर्जी अलग होती है, एक ओरा अलग होता है। You have that. थैंक यू फॉर दैट। सो जब भी मैं ऋषिकेश जाता हूँ, गंगा के घाट पे जब मैं मेडिटेट करता हूँ, सो आई कैन फील दैट ओरा। Okay. मैं फील कर सकता हूँ कि मतलब यहाँ शिव का एक प्रेजेंस है। आई कैन फील मोर कनेक्टेड टू इट। Okay. What is the best part about Shiva? Like, what is one thing which you adore a lot? शिव की मेन 3 ही स्थिति है। एक शिव का स्वरूप है जिसमें वो मेडिटेट करता है, ठीक है, कंप्लीटली, जिसे निराकार स्वरूप उसका कहा जाता है, दैट देयर इज नो थॉट्स, देयर इज नो आकार। दूसरा उसका स्वरूप है जब वो तांडव करता है। आपने कई बार जैसे भी शिव का स्वरूप देखा, 3 ही स्वरूप, एक तो ऐसे नॉर्मल बैठा है, दूसरे में वो तांडव कर रहे हैं, विच मीन्स डांस कर रहे हैं, उसका तांडव, और तीसरा उनके फैमिली के साथ। सो इट गिव्स द एंटायर मैसेज ऑफ योर लाइफ कि आपका जीवन भी ऐसे होना चाहिए, फैमिली से कनेक्टेड, पर आपका खुद का भी एक स्पेस होना चाहिए जब आप खुद के साथ जुड़े हुए हैं, विच मीन्स टू मेडिटेट। और जो भी ऊर्जा है आपकी, किसी भी आर्ट फॉर्म में आप रिलीज करो, आप स्प्रेड करो। शिव ने उसकी एनर्जी को स्प्रेड किया तांडव से, उनके क्रोध को, क्रोध विच मीन्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो दे हैव स्प्रेड देयर एनर्जी विद इन अ फॉर्म ऑफ डांस। फॉर मी, आई एम स्प्रेडिंग द एनर्जी throughout my teaching, throughout the art form of yoga which I'm teaching. Okay, you're talking about teaching. So do you feel that all of us have one skill at least जो हम औरों को पढ़ा सकते हैं? Of course, definitely you have. Okay. That could be anything. Okay. In short, what I believe, जब आपको ऐसा लगे कि मतलब ये चीज़ में आप अच्छे हो, और तब आपको ऐसा महसूस हो कि मतलब वो चीज़ें आप में छलक रही है, इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू आर फोर्सफुली टीचिंग। मेरी लाइफ में ये मोमेंट आया था व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग योगा, और जब लोगों ने सामने से मुझे कहा, यश आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी है, कैन यू प्लीज टीच मी द एक्सपीरियंस विच यू हैड। जब आप खुद का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तभी वो राइट टीचिंग कही जाते हैं, बिकॉज इफ यू आर जस्ट गेटिंग सम नॉलेज फ्रॉम द यूट्यूब एंड यू स्टार्ट टीचिंग, दैट इज नॉट द राइट टीचिंग, आई बिलीव। एक्चुअली मुझे भी ये लगता है कि सबके अंदर एक स्किल ऐसी ज़रूर होती है जो हमें औरों को सिखानी चाहिए, बट पॉइंट ये आता है जब हम सोचते हैं कि हम सिखाएं, देन वी प्लान कि हम कोर्सेज लॉन्च करें, उन कोर्सेज को कहाँ हम रिलीज़ करें, कैसे लोग उनको परचेज़ करेंगे, तो इसलिए ये सारा हैसल हमारे लिए ईजी करता है क्लास प्लस। That's great. यस, सो दे हेल्प अस होस्ट आवर कोर्सेज, एंड ताकि हम सिर्फ उस चीज़ को पढ़ाने में फोकस कर पाएँ, और बाकी ऑल द हेडेक, ऑल द स्ट्रगल दीज गाइज टेक, सो दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। Nice. So now coming back to yoga, so which is your favorite asana? Scorpion. Okay. Scorpion position क्यों favorite है, उसका reason है because I break my first Guinness World Record in that pose. Okay. Oh. So Scorpion position which means to balance our physical body on our forearms. हमारे forearms पे पूरा balance बनाना, to bring your legs upside down. ठीक है. 4 मिनट का रिकॉर्ड था,
to hold that pose for the longest period of time in the world record. Okay. And I was practicing that pose since my childhood. Okay. And with the help of consistent practice and by giving 5 years to that pose, I have been able to break that pose till 29 minutes. अच्छा 4 घंटे का मैक्सिमम था और आपने 29 4 4 मिनट मिनट का का मैक्सिमम था और आपने 29 मिनट्स तक करा. True. आप कभी जिम गए हो? Yes. ओके. सो योगा वाले लोग आई हैव जनरली सीन दे डोंट लाइक जिम एंड जिम वाले लोग दे डोंट लाइक योगा. सो क्या है जिम और योगा के बीच? इफ योगा इज 10 on 10 then how much is a gym? Okay. If yoga is 10 on 10, gym is 1 out of 10. Yes, नहीं की I जरूरत go नहीं to है. gym daily. और जो भी भाई और बहन जिम कर रहे हैं ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है. उसका सिंपल रीज़न है दैट योगा इज़ वे बियॉन्ड योर फिजिकल बॉडी. Okay. It is not only focusing on your physical body. Okay. बिकॉज योगा की जितने भी अंग है, लिम्स है, जैसे हमने डिस्कस किए, सो सिर्फ फिजिकल बॉडी के लिए नहीं है. यू आर ट्रेनिंग योर फिजिकल बॉडी हाउ टू बी मोर एक्टिव, अवेयर. आप कैसे पूरे दिन अवेयर, जागृत रह सके. बिकॉज बिकमिंग अवेयर इट डजंट मीन टू बी अवेक. अगर आप ऐसे ही पूरे दिन लेथार्जिक खड़े हैं, सो दैट इज़ नॉट गुड थिंग. बिकॉज आपकी जो ऊर्जा है, आपके शरीर की ऊर्जा है, वो अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो रही. बट यह बहुत कंट्रोवर्शियल चीज कह रहे हो कि if yoga is 10 then gym is 1. आई एम ओके विद दैट. You really feel so? Yes, I really So feel gym so, is and I have not at all experience. useful? It is useful. That's Okay. why I have given you one. Okay. It is useful. Thank you for giving 1 point to all the gym lovers. See, it is really good. It is really good if you want to transform your physical body. We cannot transform our physical body from yoga? Yes, we can. No, so see, as in transformation is like, so if I am thin and I want to gain some weight, so can I do that from yoga? Because I can definitely do that from gym. Right. But वो योगा से भी हो सकता है? हो सकता है. योगा से Definitely हो होगा. सकता है. Because yoga is not only making you flexible. Okay. डिपेंड्स कि आप किस तरीके की ट्रेनिंग करते हैं. जैसे जिम में आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं इन विच यू लिफ्ट द वेट. Okay. Okay. In yoga, you are also doing resistance training, but with your own physical body. जैसे कि आप एडवांस योगा पोजेस करते हैं, जिसमें आप हमारे दंडासन करते हैं, स्कॉर्पियन पोज करते हैं, हेड स्टैंड करते हैं, फिर वृश्चिकासन करते हैं. सो दीज आर सम पोजेस जिसमें आप हमारी खुद की बॉडी को एज अ वेट यूज़ कर रहे हैं एंड यू आर ट्रेनिंग योर सेल्फ. सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म, योगा से भी होगा. बट अगर आप एफिशिएंसी की बात करें, इजी वे अगर चूज़ करें, तो ऑफकोर्स ये जिम है. बिकॉज उसमें आपको सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट्स दे दिए गए हैं. But sorry to cut you, but I feel yoga is the easy way. I'll tell you why. I've done both. जिम के बाद बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है, 2-3 दिन उठने का मन नहीं करता. कंसिस्टेंटली जब जैसे आप कोई भी बॉडी पार्ट को ट्रेन कर रहे हो, तो आपको 2-3 दिन तक कंसिस्टेंट पेन उसमें होगा. बट वहीं पे योगा में देयर इज़ लाइक नो पेन एट ऑल. आई फील कि अगर कोई आज से भी योगा स्टार्ट करे तो उनका कोई डाउन टाइम नहीं होगा. सो आई गेस योगा इज़ ईजियर देन जिम. पेन के लेवल पे इजी है. हाँ. But to practice, yes, of course, there is a difference, because in yoga you must need to help someone. You must need to have an instructor. यश वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ लोग बियर योगा, हैवी मेटल योगा, नेकेड योगा ये सब कर रहे हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इज इट द ओरिजिनल फॉर्म व्हिच शिवा taught us? What is it? Not at all. Okay. Because This is insanity. at some point of time, Okay. at some level, yes, it is insanity. Okay. Because see, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, लोग अपने अपने इनपुट्स डालते जाते हैं. मेरी है. ये स्टाइल है, मुझे ऐसे पसंद है, जो मैंने तो मैं 3 नाम लिया, आपको इनके बारे में पता है? ऑफ कोर्स. How people are doing it? Yes, Can you beer- explain it to the audience? ओके, बियर योगा विच मीन्स लाइक आपने एक पोज परफॉर्म किया, थोड़ी सी बियर की एक सिप ली. आपने दूसरा पोज परफॉर्म किया, यू टेक द अनदर सिप. In some poses you are balancing the beer glass on the head, on the top of your head. जो भी आया है ना, कौन सा नाम था वो सॉन्ग का?
माला चला ना 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 ओके, वो आई अंडरस्टूड, एनिमल मूवी में एनिमल का ऐसे बैलेंस करते हैं। एग्जैक्टली ओके हम्म। सो विच मीन्स बियर सो योगा में उन ये है ठीक है, आपके हिसाब से दिस इज इंसेनिटी, बट अकॉर्डिंग टू देम व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस? देयर इज नो बेनिफिट दैट्स ओनली एंटरटेनमेंट अच्छा, ठीक है, सो दे आल्सो क्लेम दैट इट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। यस एग्जैक्टली ओके, एंड देन अनदर हेवी मेटल योगा। हैवी मेटल विच मीन्स जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं हैवी मेटल के ठीक है। उनके साथ वो परफॉर्म करते हैं योगा ओके। जैसे कि हैवी मेटल अगर आप देखें तो जिम के जो हैवी मेटल्स होते हैं हाँ, जैसे जिम में अगर हाँ मैं स्क्वाट्स नॉर्मली करने लग गई अच्छे से, तो मैं ट्रेनर विल से कि आप थोड़ा वेट रखो और True. वेट करके करो, सो दैट इज व्हाट वो योगा कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन कर रहे हैं जिम कॉम्बिनेशन। और योगा का सो अच्छा। एट सम लेवल यस इट माइट बी हेल्पफुल ओके। पर आपको ध्यान ये देना है कि विच एवर पोज यू आर परफॉर्मिंग उसके मेन सिग्निफिकेंस क्या है कि किस रीजन से उसको कर रहा है ओके, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही कर रहा है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सो दैट इज ठीक है। नॉट एंड व्हाट अबाउट नेकेड योगा? सो नेकेड योगा का खास एक कुंडलिनी योगा में एक रीजन है सो दैट इज लाइक यस दैट हैज बेनिफिट्स अकॉर्डिंग टू यू? यस एग्जैक्टली ओके। पर वो सोशलाइज अगर आप कंफर्टेबल नहीं है सो यू कैन परफॉर्म विथ योर ओन सेल्फ लाइक ओके। जिसमें यू आर जस्ट क्लोजिंग द डोर ऑफ योर रूम एंड आप खुद के साथ कर रहे हैं उसका ओके। मेन बेनिफिट्स क्या है कि आपकी पूरी बॉडी ब्रीथ कर रही है यू आर नॉट ओनली ब्रीथिंग थ्रू योर नोज ओके। यू हैव डिफरेंट डिफरेंट पोर्स आपकी पूरी स्किन में मिलियंस ऑफ पोर्स है जहाँ से आप ब्रीथ कर पा रहे हैं ओके। and when you are breathing throughout your body so when you are naked you can breathe through your entire body आप में एक ऊर्जा का लेवल बढ़ता है ठीक है। but it should not be done with the intention of showing your nudity ओके। it should be done to practice to get some more prana urja so So that is the main the yogis you know do this, practice this, you yourself practice this alone? I have not practiced yet Okay. because जो भी योगी की अगर हम बात करें जो एकदम अघोरीज है Okay. आपने उनको खास देखा होगा कि कुंभ के मेले में या फिर कहीं पे भी जो हिमालयाज में है दे आर हैविंग ओनली बिग बियर्ड एंड ओनली वन क्लोथ टू प्रोटेक्ट देयर लाइक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स So उनको you're saying aghoris are also yogis? in some because as I have explained there are more than 112 ways to attain enlightenment so yoga it is not only one way But now this is again very I would say contradicting, because आपने योग में पहली चीज बताई you cannot harm someone, but then aghoris eat humans. ये आपको किसने कहा अघोरीज लोगों को नहीं खाते उनके मुर्दों को खाते हैं Okay. वो अच्छा। लोगों को हार्म नहीं करते Okay. Yes, but so that is not considered as a harm if even if you're eating a dead person, that is okay. किस पर्सपेक्टिव से मतलब वो हार्म हुआ बिकॉज दे हैव लेफ्ट देम बॉडी दे हैव लेफ्ट देयर बॉडी ओके Okay. ह्यूमन बॉडी जिन्होंने लेफ्ट कर दिया छोड़ दिया ठीक है। उनकी एक अलग प्रैक्टिस है उनका एक अलग पर्सपेक्टिव है Okay. बिकॉज ऑफ दैट रीजन दे आर ईटिंग ह्यूमंस और Okay. वो भी But आपने see again, जैसे we say when someone dies, तो a proper cremation should happen and all of that. According to yoga, that is not necessary and this is okay. That if other humans are eating you. अघोरीज का जो भी उनके रिचुअल होंगे टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट मोर इनटू दैट सो आई Okay. कैन नॉट गिव यू द ब्रीफ इंफॉर्मेशन कि इसका रीजन यही है ठीक बट है। वन थिंग इज ट्रू whenever aghoris also if they are practicing anything with having a harmful effect in Okay. any human or any other species तो वो योग नहीं है but ठीक है। if they are practicing without any harm without having any like disruption तो वो सही है उनके लिए मेरे लिए नहीं Okay. right So you haven't encountered any aghori ever? Or you have? I have not Okay, you haven't. Okay. So, Mr. Yash, Yes. yoga. Yoga is now your surname. true Okay. We are going on to the rapid fire round. Rapid fire on reality presented by Class Plus. true So, let's go. What for you is the most challenging yoga pose? as I have already said scorpion Scorpion. Okay. If you had an opportunity amongst
ओशो, सद्गुरु, जय कृष्णमूर्ति एंड श्री श्री रविशंकर. सो इनमें से आप किससे योगा या मेडिटेशन सीखते हैं? अगर वो अभी होते सो आई Okay. वुड प्रेफर ओशो फॉर श्योर. उसका Okay. सिंपल रीजन यही है Hmm. दैट दे डोंट फोर्स यू कि आपको यही करना है. Okay. In Sadhguru and in Ravi Shankar, I'm not like against them, Hmm. but there are specific ways, there are specific kriyas कि आपको वही करनी है. Okay. उनके थ्रू ही आपको वो मेडिटेशन करना है. इन ओशो व्हाट दे से आपकी पर्सनालिटी क्या है और उसके हिसाब से आप उनके हिसाब से इट इज इंडिविजुअली डिफरेंट. दैट्स व्हाई. गॉट इट. अभी जो Sadhguru has gone some head surgery, so people have a lot of things to say about it. What do you have to say about it? से जब भी हमारी ह्यूमन बॉडी को Hmm. एक लेवल से ज़्यादा हम यूटिलाइज करते हैं, Hmm. ज़्यादा ही उनको हमारी ह्यूमन बॉडी की नहीं सुनते, तो ऑफ कोर्स हमारी ह्यूमन बॉडी रिएक्ट करती है. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड टू सद्गुरु. बिकॉज Okay. सद्गुरु जो ये पास इवेंट कंटिन्यूसली चल रही थी जिसमें महाशिवरात्रि हुई और काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंस हुए थे, Hmm. सो सद्गुरु वॉज जस्ट अवॉइडिंग सम हेडेक. और उनका रिएक्शन ये हुआ कि ज़्यादा ही ब्लड का रश उनके हेड में से वो फ्लोट हो रहा था. Hmm. So that has injured some neurons. But because of his sadhana and the practice which he is doing, Hmm. so he has been able to recover himself in a really quick and fast way. So that's good. Okay. But someone was this level of enlightened, उनको ऐसी प्रॉब्लम ही क्यों हुई in the first place? जैसे मैंने कहा कि कोई भी ह्यूमन बॉडी जिनके साथ हम पैदा हुए उनकी एक लिमिटेशन है. Okay. उनको और एक्सीड करेंगे Hmm. सो वो सामने से रिएक्ट करेगा ही हमारा ह्यूमन बॉडी. अच्छा, so you feel that he has overworked. यस, बिकॉज वो सोते हैं 2-3 घंटे. Okay. जितना बॉडी को रेस्ट लेना चाहिए. You have met him? नॉट पर्सनली बट Okay. यस, Okay. जिससे Got it. दूर से बातचीत हुई. ठीक है. Okay. So next question for rapid fire is, do you think that there will be a time in your life when you will stop practicing yoga, and what age would it be? आई वुड से आई वॉन्ट स्टॉप योगा बिकॉज जब तक मेरी ह्यूमन बॉडी मेरे साथ है योगा मेरे साथ रहेगा. आखिरी सांस तक. आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक. ठीक है. ओके. ऐसा कोई मैजिक आपने योगा से देखा हो, किसी की डिजीज कोई बिल्कुल रिवर्स हो गई हो? क्विकली इफ यू कुड टेल मी. There are so many. One of my cousin sister also suffering from diabetes and she is feeling much better right now. Okay, so that's the end of the rapid fire. Now I'll just conclude this podcast. I have two questions for you. One is that why is the youth still resisting yoga and meditation? हालांकि बहुत बार it has been proved, बहुत सारे एग्जाम्पल्स से, that this really works. तो youth अभी भी इसको resist क्यों कर रहा है? यूथ एक ही रीज़न है दैट यूथ को एक एक्साइटमेंट चाहिए. Okay. उनको एक एंटरटेनमेंट चाहिए. कोई भी अगर वो चीज़ कर रहे हैं, अगर वो जिम कर रहे हैं तो उनको पंप चाहिए, वो Okay. एग्रेशन चाहिए. Right. और योग थोड़ा अपोजिट है. वो आपको काम करता है, रिलैक्स करता है, ठीक है. आपकी इंद्रियों को भड़काता नहीं. ऐसा पता नहीं, कोई तो मेरे घर में एल्डर पर्सन कहता था जिसने अपनी इंद्रियों पे काबू पा लिया वो कुछ भी अचीव कर सकता है. यस ऑफ कोर्स. Okay. Next question is, if someone was watching this podcast and they want to start yoga, what is the first step they should do? Start my course. Kidding apart, but Hmm. the first step would be to find a good yoga trainer. Okay. Because for me also, the way I started my journey, I'm here because of my guru, because of my teacher. Okay. If you will find the right teacher, he will take you to the next step, for sure. Okay. Because by your own self, journey can be possible, but it will definitely harder. Okay. Thank you so much, Yash, for coming here on reality. Thank you so much. कैसा लगा आपको रियलिटी पे आके? It was such a wonderful experience, and it's my pleasure to be here in this podcast with you. Thank you so much. Thank you I'm so sure much. we'll shoot a part 2 as well. Of course. And जो भी audience के question हो, if you could take some time.